Good morning, class Earth. Yesterday, we have discussed about the main features of tribal life in different regions, and I have told you to read the table 4.1 that which tribe is found in which state of India. Now, today's topic is shifting cultivators. Some of the tribe practiced jhum cultivation, that is also known as shifting cultivation. Small patches of land in the forest were cleared. In this practice, small patches of land, small pieces of land will be cleared in the forest. Tree tops were cut so that sunlight may reach the ground, and the tree tops are being cut down. That's why the sun rays directly come on the ground. The vegetation on the land was burnt to clear it, and whatever the vegetation found on the ground, the people at that time wanted to clear that land and burnt all the vegetations. Ash was spread to fertilize the soil, and whatever the ash produced after burning, those ash were spread in that ground because they used those as the fertilizer. They broadcast the seed, scattered the seeds on the field in place of plowing the land and sowing the seeds. और वो करते क्या थे कि खेतों की जुताई और बुआई करने के से पहले करने की बजाय वो बीजों को वैसे ही छींट देते थे, फैला देते थे. वंस द क्रॉप वॉज हार्वेस्टेड, और जब एक बार फसल को काट लेते थे, दे मूव टू अनदर फील्ड, तो वह दूसरे फील्ड की तरफ मूव करते थे, वहाँ रुकते नहीं थे. द यूज्ड फील्ड वॉज लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल ईयर्स, और जो यूज्ड फील्ड होता था वह वर्षों तक वैसे ही पड़ा रहता था. शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड एरियाज. जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वो हिली एरियाज में पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं. फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में और सेंट्रल इंडिया के जंगलों में पाए जाते हैं. आफ्टर दिस हंटर्स एंड फूड गैदरर्स. Many tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. Many of the tribal groups passed their lives by hunting the animals and gathering the forest produce. They saw forest as essential for survival. For them, forests are essential for their survival. They used to hunt animals collectively and to distribute the meat among the members. In the group, they hunt the animals, and whatever the meat produced by that hunted animals, they were distributed all the meat among all the members of that team. Various fruit, roots, etc. collected from forest were used to eat. They used to different fruits, roots, which were collected from the forest to eat. Oil from the seeds of sal and mahua was used. In those days, they got the oil from the mahua
and sal seed. Some of the forest produce were sold by the tribes. Some of the forest produce collected by the different tribes, they sold their produce and whatever they gained to get rice and other food grains to eat. The pastoral tribe. Many tribal groups were pastoral nomads who moved from place to place with their herds of animals. बहुत से ऐसे ट्राइब्स हैं जो एक जगह नहीं रहते, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते रहते हैं अपने पालतू पशुओं के साथ, जिनमें कैटल होते हैं, सीप होता है, गोट होते हैं, कैमल होते हैं। दे फॉलोड सीजनल माइग्रेशन, और वे हर सीज़न में अपने लिए अलग अलग एरिया को डिसाइड करते हैं, उसी एरिया में जाके रहते हैं। सेटल्ड कल्टीवेटर्स. सम ऑफ द ट्राइब ग्रुप्स हैड गिवन अप द ट्राइबल ट्रेडिशन एंड सेटल्ड एज कल्टीवेटर्स एट वन प्लेस. सम ऑफ द ट्राइब ग्रुप, कुछ ऐसे भी ट्राइबल ग्रुप होते हैं, हैड गिवन अप द ट्राइबल ट्रेडिशन, जिन्होंने ट्राइबल ट्रेडिशन को ही छोड़ दिया और एक कॉमन पीपल की तरह से एक स्थान पे एक कल्टीवेटर की तरह, एक किसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे. जनरली द लैंड बिलोंग टू द होल ट्राइब एज अ होल, और सामान्यतः द लैंड बिलोंग्ड टू द होल ट्राइब एज अ होल, उस पूरे ट्राइब के लिए वह ज़मीन पूरी ट्राइब से संबंधित हो गई. द पावरफुल मेंबर ऑफ द ट्राइब बिकेम द चीफ ऑफ द ट्राइबल्स, और जो उस कम्युनिटी का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता था उसे उस ट्राइबल ग्रुप का चीफ बनाया जाता था. द मुंडाज, सांथाल एंड गोंड्स वर सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स. इन ट्राइबल ग्रुप्स में मुंडाज आते हैं, सांथाल्स आते हैं और गोंड्स आते हैं. इसके बाद है बेटा हर्डिंग रियरिंग. सम ट्राइब ग्रुप लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स. कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप हैं जो पशुओं को चराते हैं, पशुओं को पालते हैं, उन्हीं पे अपनी लाइफ साइकिल को डिपेंड किए रहते हैं. एंड वर डिपेंडेंट ऑन देयर हर्ड्स ऑफ शिप आर कैटल. दे वर नोमैड्स. ये नोमैड्स होते हैं, मतलब एक जगह पे सेटल नहीं होते, टाइम टू टाइम ये जगह चेंज करते रहते हैं. एंड मूव्ड अबाउट विद देयर एनिमल्स. अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट होते हैं. द माइग्रेशन वाज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर देयर एनिमल्स. और उनका ये माइग्रेशन डिपेंड करता है कि कब, किस सीज़न में, किस एरिया में उनके पशुओं को चारा मिल सकता है, पशुओं के लिए भोजन अवेलेबल हो सकता है. आफ्टर दिस इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल अंडर ट्राइबल पीपल. ब्रिटिश रूल का क्या प्रभाव ट्राइबल पीपल पे पड़ा. द ट्राइबल्स वर ट्रेडिशनली फॉरेस्ट डिपेंडेंट. ये जो ट्राइबल्स थे वह पारंपरिक रूप से फॉरेस्ट डिपेंडेंट थे, जंगलों पर आश्रित थे. एंड अ वेरी क्लोज टू निट कम्युनिटी दैट प्रीफर टू लिव इन आइसोलेशन. और ये उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जो बिल्कुल एकांतवास करती थी, एकांत में रहती थी. अंडर ब्रिटिश रूल के अधीन देयर लाइव्स वर अफेक्टेड इन मैनी वेज. उनका जीवन कई तरह से प्रभावित हुआ. सच एज देयर आइसोलेशन कम टू एन एंड. और इस तरह से उनका आइसोलेशन धीरे धीरे करके समाप्त हुआ. इनमें पहला है डिस्पोजिशंस ऑफ द लैंड. सो थैंक यू. फ्रॉम tomorrow onwards we will have the topic disposition of the land.